Good morning, class. So today we'll be discussing the practice question from our unit number 5, and the paper we are dealing here is supply chain analytics. I hope that you have watched the previous videos of unit 1, 2, 3, 4. I've also given you two case studies with which you can practice and you can expect the question on the same line. Okay. So let's get started with the unit number 5. So this is the question I've taken for unit number 5, and this question is actually a comprehensive question which covers all the parts of and all the topics of your unit number 5. Okay, and I'm sure if you practice this question, you'll be able to completely cover the unit number 5. So let's get started. The question is, you have to assess the importance of the distribution analytics. Okay, in the management of supply chains. What is the importance of distribution analytics? है ना? What is the importance of data analytics in distribution in your supply chain management? Okay. You also need to examine the effects of choosing the right location. क्या फायदा है right location choose करने का for the distribution centers and process of optimizing transportation and distribution planning for the outbound logistics. Okay, next you have to analyze how the application of analytics can enhance the inventory policies and also optimize the order fulfillment process, right? So you need to know the first, you have to give the पॉइंट्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एनालिटिक्स एनालिटिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है डिस्ट्रीब्यूशन में दूसरा आपको बताना है कि व्हाई राइट लोकेशन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का राइट लोकेशन क्या होना चाहिए वो चूज करना क्यों इंपॉर्टेंट है साथ ही साथ आपको बताना है कि ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की प्लानिंग करनी स्पेशली फॉर आउटबाउंड लॉजिस्टिक क्यों इंपॉर्टेंट है ना देन यू हैव टू एनालाइज कि हाउ दिस डेटा एनालिटिक्स it can enhance the inventory policy and also optimize the order fulfillment process. Okay, so these 3 to 4 points we have to deal with the question, and the question will come for 12.5 marks in your paper. Okay, so this is a sample of the answers we are expected to write. Okay, so see, first the discussion is on the importance of the distribution analytics in supply chain management. So it is given that it is very important because it can help you to increase the efficiency of the supply chain. It can also give you the cost effectiveness. Customer satisfaction can be achieved. So the points here are, the first one is enhanced visibility. If you use distribution analytics in the distribution, then you can provide the real-time visibility into the distribution activity, है ना? And thus you can just quickly respond to any inefficiencies during the distribution, during the logistics, right? दूसरा है कॉस्ट रिडक्शन आपको पता ही है कि अगर आप रूटिंग एल्गोरिदम्स यूज करोगे और बेस्ट ऑप्टिमम रूट यूज करोगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो होगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचेगा साथ ही साथ आप बेटर अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन इनएफिशिएंसीज आ रहा होगा उसको मैनेज कर पाओगे राइट और फिर आपका क्या होगा वेयर हाउसिंग कॉस्ट भी बच जाएगा क्योंकि आपको पता रहेगा एग्जैक्टली एट व्हाट लोकेशन व्हाट अमाउंट हैज टू बी लाइक केप्ट अप ओके नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विसेज ऑफ कोर्स आप अगर टाइमली मतलब रूटिंग अच्छा रखोगे ऑप्टिमम रूटिंग यूज करोगे और टाइमली डिलीवर दोगे है ना एक्यूरेट डिलीवरी दोगे कोई भी मिसमैच नहीं रहेगा तो कस्टमर की लॉयल्टी और सेटिस्फेक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी दूसरा आप जो डिसीजन लोगे सिंस आप डेटा एनालिटिक्स यूज करो आपके पास हर एक ऑर्डर के लिए हर एक फोरकास्टिंग के लिए प्रॉपरली डेटा बैक्ड है तो आप डिसीजन जो करोगे वो भी बेटर होगा बिकॉज आप डिसीजन रिलेटेड टू इन्वेंट्री कर लो रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कर लो ट्रांसपोर्टेशन को भी कोई भी स्ट्रेटेजी बनाओगे तो वो ज्यादा बेटर डिसीजन होगा बिकॉज आप डेटा यूज करके डिसीजन ले रहे हो नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग मतलब कि आप अपने परफॉर्मेंस का भी मॉनिटर कर सकते हो बिकॉज यू आर कलेक्टिंग ऑल द डेटास इन द डिस्ट्रीब्यूशन ओके तो आप बेटर मैंने मॉनिटर कर सकते हो कि ओके दिस ट्रांसपोर्टेशन वाज बेटर दिस रूटिंग वाज बेटर है ना तो आप बेटर कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट भी कर सकते हो और बेटर अपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को वॉच कर सकते हो राइट तो दीज आर द इम्पोर्टेंस व्हाई यू नीड टू यूज डेटा एनालिटिक्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो ओके नाउ वी विल बी डिस्कसिंग कि राइट लोकेशन क्यों जरूरी है राइट लोकेशन जरूरी है ताकि आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाए ताकि आपकी सर्विस लेवल इंप्रूव हो जाए इन्वेंट्री एफिशिएंसी हो जाए है ना जब ही आपके पास प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का लोकेशन सही रहेगा तभी आपकी इन्वेंट्री लेवल भी जो है ना वो अक्रॉस द नेटवर्क एक तो रीच हो पाएगी प्लस आपका होल्डिंग कॉस्ट और
जो स्टॉक आउट वगैरह है ये सब मैनेज प्रॉपर हो पाएगा, कभी स्टॉक आउट नहीं होगा। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर प्रॉपर है कि कभी भी जैसे आपका बिलो द मिनिमम पॉइंट गया है, वो फटाफट उस नेटवर्क को कवर कर लेगा, तो आपका कभी भी इनएफिशिएंसी नहीं आएगा इन्वेंट्री में। स्केलेबिलिटी मतलब आप हर एक एरिया को रीच आउट कर पाओगे, अगर आप सही प्रॉक्सिमिटी टू द कस्टमर एंड प्रॉक्सिमिटी टू द सप्लायर में अगर आपने अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोल रखा है, देन ऑटोमेटिकली यू विल बी मोर स्केबल एंड scalable because you will be having a better reach, है ना, for all the market demands. Then risk mitigation मतलब रिस्क भी कम हो सकता है अगर आप प्रॉपर लोकेशन पे हो। रीजन बीइंग कि अगर आप आपको पता है लाइक आपने प्रॉपर लोकेशन जो है आपने डेटा एनालिटिक्स यूज करके प्रॉपर लोकेशन निकाला है, जीआईएस वगैरह यूज करके, सैटेलाइट यूज करके, तो आपको पता है कि कौन सा एरिया इज मोर प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर, कौन सा एरिया इज मोर प्रोन टू ऑल अदर डिजास्टर्स, तो आप बेटर रिस्क को पहले से मिटिगेट कर सकते हो, राइट। तो दीज आर द पॉइंट्स यू कैन जस्ट गिव फॉर योर लाइक why the right location for the distribution center is important. Next the discussion is how can you optimize the transportation फॉर स्पेशली द आउटबाउंड लॉजिस्टिक। आउटबाउंड लॉजिस्टिक जो कि आप बाहर थर्ड पार्टी को देकर करवा रहे हो या आउटबाउंड करवा रहे हो, तो उसमें अगर आप उसके डिस्ट्रीब्यूशन या उसके ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप डेटा एनालिटिक्स यूज करते हो तो आप कैसे इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, है ना। तो सबसे पहले तो कि रूट ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है। अगर आप एनालिटिकल टूल यूज करते हो ना, तो उससे क्या होता है कि आपकी डिलीवरी रूट्स जो होती है वो ऑप्टिमाइज हो जाती है। रूट्स अगर ऑप्टिमाइज है तो फ्यूल कंजम्पशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एज अ रिजल्ट कम हो जाएगा, ठीक है। लोड ऑप्टिमाइजेशन, लोड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है कि हर एक व्हीकल जो है ना वो फुली यूटिलाइज्ड और बैलेंस्ड होना चाहिए, बैलेंस लोडिंग कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, और कोशिश करनी है कि मिनिमम नंबर ऑफ ट्रिप्स रिक्वायर्ड हो, है ना, एक ट्रिप में जितना कवर हो जाए, राइट। तो ये होता है लोड ऑप्टिमाइजेशन। तीसरा है कैरियर सिलेक्शन। कैरियर सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि आप जो व्हीकल यूज कर रहे हो कैरियर के लिए, लाइक शिपमेंट या रोड्स रेलवेज जो भी आप यूज कर रहे हो, वो कैरियर जो है उसको आप प्रॉपर्ली एनालाइज करोगे और कॉस्ट डेटा उसका बनाओगे कि विल इट बी एफिशिएंट लाइक एंड इट विल बी सस्टेनेबल एज वेल। तो आप इस तरह से कैरियर का सिलेक्शन करते हो, ठीक है। नेक्स्ट होता है डिलीवरी शेड्यूलिंग। डिलीवरी शेड्यूलिंग का मतलब क्या है कि अगर आप प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स आई गेस यू रिमेंबर कि डेटा डिमांड फोरकास्टिंग में यूज होता है, तो अगर आप प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स को यूज करते हो तो अपने डिलीवरी शेड्यूल जो है वो बहुत ऑप्टिमम कर सकते हो, और अगर आपका डिलीवरी शेड्यूल ऑप्टिमल है तो कोई भी डिलेज नहीं होगा, ठीक है, और डिलेज नहीं हुआ तो कस्टमर ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होंगे। उसके बाद हो गया रियल टाइम ट्रैकिंग, मतलब आप जो है वो रियल टाइम ट्रैक कर पाओगे, और रियल टाइम आपका जैसे कि अमेजन और ये सब में होता है, फ्लिपकार्ट में, कि आप रियल टाइम डेटा ट्रैक कर लो कि कब वेयर हाउस में, कब शिपमेंट में, कब डिलीवरी के लिए आउट हो गया एंड ऑल दीज थिंग्स। तो रियल टाइम ट्रैकिंग भी हो पाएगा अगर आप डेटा एनालिटिक्स को ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करोगे फॉर द आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। सो दीज आर द पॉइंट्स यू कैन प्रिपेयर दीज पॉइंट्स फॉर योर पेपर, राइट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो था आपके क्वेश्चन में वो था कि हाउ कैन यू इनहेंस इन्वेंट्री पॉलिसी। अपने इन्वेंट्री पॉलिसी को कैसे इनहेंस कर सकते हो और ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस को कैसे मतलब एनालिटिक्स यूज करके बेटर कर सकते हो। तो सबसे पहली बात तो है कि अगर आपका डेटा एनालिटिक्स यूज कर, सबसे पहली बात है कि आप जो है डिमांड फोरकास्टिंग प्रॉपर कर रहे हो। डिमांड फोरकास्टिंग मतलब जो आप डिमांड फोरकास्ट जो कर रहे हो वो काफी हद तक वो एक्यूरेट है, जिसकी वजह से जो आपका इन्वेंट्री है वो ऑप्टिमल मेंटेन हो रहा है, ना ओवर है ना अंडर है, ऑप्टिमम मेंटेन हो रहा है। दूसरा सेफ्टी स्टॉक ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि आप अपना जो है मिनिमम स्टॉक हमेशा मेंटेन रखते हो, सेफ्टी स्टॉक जो है हमेशा मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से सेफ्टी स्टॉक जब मेंटेन रहता है तो आपका सर्विस लेवल काफी कम हो जाता है, बिकॉज आपको बिल्कुल एकदम हड़बड़ी नहीं होगी कभी, है ना, और ना ही कभी आपको स्टॉक आउट वाला सिचुएशन आएगा, ठीक है। तो होल्डिंग कॉस्ट और ये जो है ना कि मार्केट की वेरिएबिलिटी को मीट करने वाला ये चीज बड़े आसानी से हो जाता है ना, तो सेफ्टी स्टॉक ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट रीऑर्डर पॉइंट कैलकुलेशन। तो आप अगर इन्वेंट्री पॉलिसीज में जो आप जो भी पॉलिसी फॉलो कर रहे हो, लीफो पीपो वट एवर पॉलिसीज आप फॉलो कर रहे हो, ईओपी वगैरह अपने ऑर्डर करने के लिए, तो उसमें अगर आप डेटा एनालिटिक्स यूज करते हो तो रीऑर्डर पॉइंट कैलकुलेशन आपका बहुत बेटर हो जाता है। रीजन बीइंग कि आप हिस्टोरिकल डेटा जो है उससे क्या करते हो, डिमांड पैटर्न, हिस्टोरिकल डेटा जो है उससे डिमांड पैटर्न कैलकुलेट करते हो, और डिमांड पैटर्न के हिसाब से आप अपना रीऑर्डर पॉइंट या फिर मिनिमम स्टॉक जो है उसको मेंटेन करते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया एबीसी एनालिसिस, ठीक है। अगर आप डेटा एनालिटिक्स यूज करते हो तो एबीसी एनालिसिस बेटर हो सकता है। एबीसी एनालिसिस बेसिकली क्या होता है कि आप ना अपने पूरे स्टॉक्स को, गुड्स को क्लासिफाई कर देते हो ए बी सी कैटेगरी में। ए सबसे
इंपॉर्टेंट गुड है, मतलब आपके आप जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका एरिया है, जो सबसे फोकस्ड एरिया है, वो आपका होता है कैटेगरी ए। कैटेगरी बी होता है जो थोड़ा मतलब नॉर्मल एरिया होता है, ठीक है। मतलब जिस और भी सेगमेंट्स जो है आपके वो हो जाते हैं कैटेगरी बी में। कैटेगरी सी होता है आपका जो चीपेस्ट हो गया और जिसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन सबसे कम है, और जो वेरिएबिलिटी आपने अपने मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में रखा हुआ है या आपने स्टॉक्स में रखा हुआ है वो हो गया। जैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक फोकस एरिया होता है ना, जो कोर उनका एरिया होता है, जो कोर एरिया जिसमें ज्यादा प्रॉफिट निकल रहा है वो होता है कैटेगरी ए। नेक्स्ट होता है बी, और जो सबसे वेरिएबल एरिया हो जाता है और जिसमें सबसे प्रॉफिट मार्जिन कम है वो हो जाता है कैटेगरी बी सी। ठीक है, तो इस तरह आप ए बी सी एनालिसिस करके बेटर सेगमेंट कर सकते हो अपने इन्वेंट्री को, और उसके बाद फिर उसके हिसाब से आप अपने मैनेजमेंट डिसीजंस ले सकते हो, मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हो गया इन्वेंट्री टर्नओवर एनालिसिस। इन्वेंट्री टर्नओवर एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि आप अपने इन्वेंट्री के टर्नओवर की एनालिसिस बेटर कर सकते हो कि कौन सा आपका मूविंग आइटम ज्यादा है, मतलब टर्नओवर से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड, है ना, कौन सा ज्यादा मूविंग आइटम है, किस आइटम को आपको स्टॉक्स करके रखना है, एंड ये सबसे रिलेटेड जो स्ट्रेटेजीज होगी यू कैन बेटर टेक दो स्ट्रेटेजीज एंड मेक दो स्ट्रेटेजीज, राइट। तो ये आपका हो गया कि आप इन्वेंट्री पॉलिसीज, ठीक है, पॉलिसीज बना रहे हो, जो इन्वेंट्री किस तरह से मेंटेन करना है उसकी जो पॉलिसीज बना रहे हो, उसमें अगर डेटा एनालिटिक्स यूज करते हो तो आप बेटर डिमांड फोरकास्ट, बेटर स्टॉक ऑप्टिमाइजेशन, रीऑर्डर पॉइंट, एबीसी एनालिसिस और ये सब बेटर कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका कि ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस में आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो सबसे पहली बात है, अगर आप एनालिटिक्स यूज कर रहे हो तो आप क्या करोगे, अपने ऑर्डर को प्रायोरिटाइज कर सकते हो, जैसे ए बी सी वगैरह कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप अपने कस्टमर के इंपॉर्टेंस के हिसाब से, या फिर ऑर्डर साइज के हिसाब से, या फिर डिलीवरी डेडलाइन के हिसाब से, तो आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर को ऑप्टिमाइज सॉरी ऑर्डर को सेगमेंट कर सकते हो, ठीक है, प्रायोरिटाइज कर सकते हो। अकॉर्डिंगली आप वेयर हाउस का भी मैनेजमेंट कर सकते हो। तो पहली बात तो ये होगी कि ऑर्डर प्रायोरिटाइज हो सकता है। दूसरा हो गया वेयर हाउस का मैनेजमेंट भी बेटर हो जाएगा, ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए वेयर हाउस का मैनेजमेंट भी बेटर हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको पहले से पता है कि किस किस स्टॉक को प्रायोरिटाइज करना है, तो आप अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली पिकअप और पैकेजिंग और शिपिंग और मतलब सारा प्रोसेस अकॉर्डिंगली रहता है कि कौन सा पहले पिकअप होगा, कौन सा पहले शिपिंग होगा एंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, जिससे क्या होता है कि आपका प्रोसेसिंग टाइम जो होता है ना वो रिड्यूस हो जाता है, राइट। तीसरा हो गया ऑटोमेटेशन एंड रोबोटिक्स। अगर आप डेटा ड्रिवन अगर यूज कर रहे हो डिसीजंस, ठीक है, डेटा ड्रिवन, तो उससे क्या हो रहा है ना, आप टेक्नोलॉजी वगैरह यूज कर रहे हो, जिससे क्या होगा कि सारे जो आपके प्रोसेसेस हैं, लाइक पिकअप से लेके डिस्ट्रीब्यूशन से लेके लॉजिस्टिक्स से लेके पूरा आपका रीच, जब तक कस्टमर को रीच ना हो जाए तब तक आप क्या कर सकते हो, बेटर रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकते हो। तो ये चौथा बात हो गया। ठीक है, तो आप ट्रैकिंग कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि रियल टाइम एक तो अपडेट्स मिलेगा, कोई अगर इनएफिशिएंसीज आई तो आप बेटर उसको डील कर सकते हो, उसके बाद कस्टमर सेटिस्फैक्शन का भी पता लगेगा आपको, है ना, कस्टमर लॉयल्टी बढ़ेगी। तो ये सारा है। उसके बाद एक होता है क्रॉस डॉकिंग। क्रॉस डॉकिंग में क्या होता है ना, अगर आप एनालिटिक्स यूज करते हो ना, तो क्रॉस डॉकिंग ऑपरेशन या फिर मतलब होता है ना कि कहीं पर आपको एक मतलब इन द मिड वे जो आप वेयर हाउस वगैरह ये करते हो, रखते हो कि इमरजेंसी में यहाँ से पिकअप होके चला जाएगा, तो वो सब वेयर हाउसिंग का भी काम जो है वो कम हो जाता है। एंड बेसिकली आपका जो ऑर्डर फुलफिलमेंट जो टाइमिंग होता है ना, डिलीवरी टाइम, वो काफी एफिशिएंट और स्पीड अप हो जाता है। तो ये फायदा है अगर आप डेटा एनालिटिक्स order fulfillment process में use करते हो। तो this was the whole part of the questions we have dealt with. Then you can just write a conclusion for a paragraph. तो उसमें आप लिख सकते हो okay, so you know that distribution analytics is very effective for the supply chain management because it can reduce the cost. The general points that we are writing for all the question, it can enhance the visibility, it can improve the customer service. एंड द स्ट्रेटेजिक, अगर आप स्ट्रेटेजिकली डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में अगर आप डेटा एनालिटिक्स वगैरह यूज करते हो तो उससे क्या होगा कि आपका ट्रांसपोर्टेशन भी ऑप्टिमाइज हो जाएगा, ठीक है, इन्वेंट्री पॉलिसी में भी हेल्प करेगा, और टुगेदर अगर देखा जाए तो इससे आपका बेटर कॉस्ट इफेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट होगा और आप रिस्पॉन्सिव हो जाओगे, मतलब डिमांड को तुरंत मीट कर पाओगे। So that's the discussion for this practice question unit number 5, and not only this, you have covered the whole unit number 5 in a like uh, in a crisp manner. Okay, तो हमने यूनिट नंबर 5 एक तरह से पूरा ही रिवाइज कर लिया। तो इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार बैठ कर देखो, समझो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनीथिंग इफ यू आर नॉट अंडरस्टूड, जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं फटाफट उस पर आपको आंसर बैक करूंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।
if you like the video, you can just hit the like button, and for all other videos, you can what you can do is you can just subscribe the channel, so that अगर और videos मैं upload करती जाऊंगी तो मुझे videos reshare नहीं करने पड़ेंगे, है ना, वो आपको automatically पता लग जाएगा, क्योंकि कभी कभी ना reshare करना मैं भूल जाती हूँ, ठीक है, तो वो आपको automatically पता लग जाएगा. Thank you so much. Bye bye.